جی فروبل آپ سٹارٹ کریں، آپ کی مائک آف ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ خداوند لشکروں کے خدا تیری تعریف تیری ستائش کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو جو مہربان ہے، تو جو فتح سے بڑھ کے غلبہ دیتا ہے، تو جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس محبت کے لیے خداوند جو تو ہمارے اندر قائم کیے خدا کے، ہم تیرے نام کو جلال دینے کے لیے مل کے خدا تیری ستائش کریں یسوع کے نام میں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں انٹرنیٹ کے انتظام پہ تیرا ہاتھ بڑے رول قدس خداوند، اور یسوع کے نام میں جتنے لوگ تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں ان پہ تیری برکت ہو خداوند، یسوع کے نام میں تیری حضوری ان پہ ہو خداوند، اور لوگوں کو مہیا کر خداوند تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیرے نام کی ستائش کریں خداوند۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو یہاں پہ موجود ہے خداوند، سارے وقت میں تو شامل حال ہونا یسوع کے نام میں۔ جتنے گیت زبور گائیں خداوند، جتنے ہم تیری ورشپ کریں تیرے حضور میں منتیں درخواستیں رکھیں یسوع کے نام میں، تیرا ہاتھ بڑے رول قدس خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ساری باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، مسیح یسوع کے خوبصورت نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ ہم ورشپ کریں گے ماریہ کے ساتھ مل کر۔ خدا کی تعریف ہے، خدا کے حضور میں کوشش کریں گے۔ یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچا تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچا تیرا، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو، تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، بزرگ نام تیرا، بزرگ نام تیرا، ہاللیلویہ، خدا کی تعریف۔ ہاللیلویہ، خداوند تیری ستائش ہو، بزرگ نام تیرا ہے،
ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں. ہم اسی طرح ورشپ میں آگے بڑھتے ہوئے انٹی نصرت کے ساتھ مل کر ورشپ کو جاری رکھیں گے. خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم گائیں گے زبور 103. تو آخائے میری جان مبارک خدا ہے. تو آخائے میری جان مبارک خدا ہے. تیو سے داہی نہ پوے ترسدا ہے. تیو سے داہی نہ پوے ترسدا ہے. تو آخائے میری جان کدی بھی نہ بھول بخشاؤ دیانو. کدی بھی نہ بھول بخشاؤ دیانو. تو کہ آئے میری جان مبارک خدا ہے. تو کہ آئے میری جان مبارک خدا ہے. تو آخائے میری جان تیرے سارے پاپانو او ہے مٹاندا. تیرے سارے پاپانو او ہے مٹاندا. تینوں سارے روگاں تو دیندا شفا ہے. تینوں سارے روگاں تو دیندا شفا ہے. تو آخائے میری جان تیری جان نو موت تو بچاندا. تیری جان نو موت تو بچاندا. تینوں تاج رحمت کردا ہے. تینوں تاج رحمت کردا ہے. تو آخائے میری جان تینوں چنگیاں چیزاں نال رجاندا. تینوں چنگیاں چیزاں نال رجاندا. او تیری عمر نو خوشی بخشدا ہے. تیری عمر نو خوشی بخشدا ہے. تو آخائے میری جان اوکا باندے وانگر تینوں زور دے کے. اوکا باندے وانگر تینوں زور دے کے. او تیری جوانی نو کردانے ہے. اور تیری جوانی نو کردانے ہے. تو آخائے میری جان مبارک خدا ہے. تیو سے داہی نہ پوے ترسدا ہے. تو آخائے میری جان. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਰਜਾਂਦਾ. خداوند کی تعریف ہو. وہ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. وہ ہمارا باپ ہے. اور ایک باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہے. اور ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری خاطر بہت اچھا سوچتا ہے. جو ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی وہ ہمیں عطا کرتا ہے. اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم انٹی نصرت کے ساتھ مل کر یہ ایک اور گیت گائیں گے جو بھی ہم گانا چاہیں. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running.
there was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross. From even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you, Jesus, died. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Amen. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. आमीन, हालेलुया। खुदावंद के तरीक को इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मारिया के साथ में खुदावंद की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हम एक नया गीत गाएंगे, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, कड समुद्रों पार ले गया जेड़ा। उसके जैसा कोई और माबूद नहीं है जो समुंदर पार करवा दे, और हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, समुद्रों पार ले गया जेड़ा, कट समुद्रों पार ले गया जेड़ा। तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा। धरती नूरो नूर सी जिथे लोग सी तेरे, जश्न दी धरती नूरो नूर सी जिथे लोग सी तेरे। लहू बरेदा चौखटा ते सुख सी चार चपेरे, लहू बरेदा चौखटा ते सुख सी चार चपेरे। बागी मिस्र दे अंदर छाया हनेरा, बागी मिस्र दे अंदर छाया हनेरा। तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा। अग ते बदल बन के सानू अपना राह बखाया, अग ते बदल बन के सानू अपना राह बखाया। मन आसमानी बियाबान दे विच सी सानू खवाया,
मन असमानी बियाबान दे विच सी सानू खवाया हर पासे छाया जलाल सी तेरा हर पासे छाया जलाल सी तेरा तेरे वर्गा होर मबूद है तेरा तेरे वर्गा होर मबूद है तेरा शुक्र गुजारी कर दे रहे है खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी कर दे रहे है खुदावंद तेरी जिंदगी दे हर सादे अंदर होवे मर्जी तेरी जिंदगी दे हर सादे अंदर होवे मर्जी तेरी होवे बस तेरा ही नाम चेरा होवे बस तेरा ही नाम चेरा तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा कट समुद्रों पार ले गया जेड़ा कट समुद्रों पार ले गया जेड़ा तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा 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 हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके जैसा और कोई मबूद नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी शान निराली है। वो हमारा रब है जिसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया, जिसने अपना प्यार अपने बेटे की सूरत में हमारे लिए दिखाया और वो आज भी हमसे बहुत प्यार करता है। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका कलाम फरमाता है जहाँ 2 या 3 उसका नाम लेते हैं वो उनके दरमियान होते हैं। और आज यकीनन खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। हम इसी तरह खुदावंद की वर्शिप में बढ़ते हुए मारिया के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे और उसके बाद कोर्स और उसके बाद दुआ के बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अब तक बादशाह है हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अबद तक बादशाह है हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अबद तक बादशाह है अदालत के लिए तू तख्त पर है तेरे आगे खुदा सारा जहां है अदालत के लिए तू तख्त पर है तेरे आगे खुदा सारा जहां है तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा सच्चाई से मसीहा काम देगा तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा सच्चाई से मसीहा काम देगा सभी कौमें तेरे आगे मुहाजिर खुदावंद रास्ती से तू बड़ा है सभी कौमें तेरे आगे मुहाजिर खुदावंद रास्ती से तू बड़ा है हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अबद तक बादशाह है उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं
تو اونچا برج بھی ان کے لیے ہے، اٹھا دے ظلم جو دکھ سے بھرے ہیں، تو اونچا برج بھی ان کے لیے ہے، دل و جاں سے جو لیتے نام تیرا، مصیبت میں تو ان کا آسرا ہے، دل و جاں سے جو لیتے نام تیرا، مصیبت میں تو ان کا آسرا ہے، ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا، خداوند تو ابد تک بادشاہ ہے، تجھے جو ڈھونڈتے طالب تیرے ہیں، کبھی بھی ان کو تو بھولا نہیں ہے، تجھے جو ڈھونڈتے طالب تیرے ہیں، کبھی بھی ان کو تو بھولا نہیں ہے، خداوند کی کرو تعریف سارے، وہی صہیون میں زندہ خدا ہے، خداوند کی کرو تعریف سارے، وہی صہیون میں زندہ خدا ہے، ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا، خداوند تو ابد تک بادشاہ ہے، عدالت کے لیے تو تخت پر ہے، تیرے آگے خدا سارا جہاں ہے۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا۔ یقیناً ہمارے خداوند کا تخت شروع سے ہے اور اب تک رہے گا، اور تجھے جو ڈھونڈتے طالب تیرے ہیں، تو کبھی بھی ان کو بھولا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، جو بھی خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا میں مسرور ہے، تب میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ اور آج بھی ہم جب اپنے خدا کی حضوری سے مانگتے ہیں تو خدا اپنا آسمان کھول کے ہمارے لیے زمین پہ اتراتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، چاہے ہم 2 یا 3 ہی اس کا نام لینے کے لیے، مجبے کی صورت میں نہیں، لیکن 2 یا 3 ہی اس کا نام لینے کے لیے جھکتے ہیں تو خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہوتی ہے، خدا کی پریزنس ہمارے درمیان ہوتی ہے، ہم اسے فیل کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جو آسمان اور زمین پہ تخت لگائے ہوئے ہے، جس کا نام یہوہ یری ہے، وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ آسمان چھوڑ کے ہماری خاطر زمین پہ اتر آتا ہے۔ اس کی ستائش کریں گے اور ایک آخری کورس گائیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے کام کو سنیں گے۔ ہم کورس گائیں گے اور اس کے بعد خدا کے کلام کو سنیں گے۔ طوفانوں سے نہ گھبرانا، مشکل میں بھاگ نہ جانا، تیرے ساتھ ہے مسیحا، بس آنکھیں اس پہ لگانا، طوفانوں سے نہ گھبرانا، مشکل میں بھاگ نہ جانا، تیرے ساتھ ہے مسیحا، بس آنکھیں اس پہ لگانا، طوفانوں سے نہ گھبرانا۔ خون کا ہر ایک قطرہ تیری خاطر بہتا رہا، باہیں پھیلا کے سولی پہ اپنی جان لٹاتا رہا، خون کا ہر ایک قطرہ تیری خاطر بہتا رہا، باہیں پھیلا کے سولی پہ اپنی جان لٹاتا رہا،
बाहों में उसकी आना, सारे कदमों में उसके झुकाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में बात न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, वादा किया है उसने, साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, सारी दुनिया चाहे छोड़ जाए, हाथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, वादा किया है उसने, साथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, सारी दुनिया चाहे छोड़ जाए, हाथ छोड़ूंगा ना मैं तेरा, बस प्यारे ना उसका बुलाना, हर खतरे से लड़ जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में बात न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, बस आंखें उस पे लगाना, बस आंखें उस पे लगाना। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। बस आंखें उस पे लगाना, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसी वबा क्यों ना हो। कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमे के करीब आने ना पाएगी। तारीफ करते हैं क्योंकि वो हमारा रब है, वो अपने लोगों को जानने की तरह है, वो हर तरह। और साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी, दुआ करें खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बंदी। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल से और दिल की था गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं। मालिक, आप जो करोबियों पर सल्तनत करने वाले असीम बाप है, आप जो कहर करने में धीमे और शफकत में गनी है, आप वादों में सच्चे और कादिर मुत्ते के आपके सारे वादे आंख के साथ हैं। हम जमीन तक झुक कर मालिक सजदा रेस होकर आपके कदमों में आते हैं। मालिक पाक खुदा की सारी वर्शिप के लिए जो खुदावंद हमने की है, मालिक पाक खुदा आज की वर्शिप के वसीला से खुदा तेरे लोग बरकत पाए। पाक खुदा जब वक्त पहुंचा कि हम आपकी शीरी मीठी आवाज को सुने, मसीह यीशु में पाक खुदावंद आपने जिसके हृदय में अपने कलाम को रखा है, मालिक पाक खुदा आपके खादमा को आपके हाथ में देता हूँ। खुदा इज्तिमाई तौर पर खुदा तेरी बेटी को तेरे पाक मसवा पर लेकर आता हूँ। मालिक अपने हाथ को बढ़ा करके खुदा सर की चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक छूना, होंठों का, गले का, सांसों का सुमा लेना। मालिक पाक खुदा बोलने वाली आज तेरी बेटियां बल्कि तेरा पाखलूस में से हो करके तेरे लोगों से कलाम करे मालिक। और जहां तक खुदावन तेरी आवाज जाए खुदा, इस नेट के जरिए से खुदा, यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, जहां जहां भी खुदा तेरी बेटी की खुदावन जो तेरी मार्फत है खुदा बोलने वाली है आवाज जाए खुदावन पाक खुदा, वो जिंदगियां यीशु के नाम में बरकत पाए खुदा, वो जिंदगियां यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाए मालिक पाक खुदा। और हुलकुदस पाक खुदावन आज के सारे पार्टिसिपेंट को तेरे हाथ में देता हूँ मालिक, उन सबको छूना खुदा,
नाम बना बरकत देना खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बने मालिक। आज का कलाम बंधनों को तोड़ने वाला कलाम हो। आज का कलाम खुदा हमें खुदा जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ाए मालिक पाक खुदा। आज का कलाम अजवाजी जिंदगी के तलक से खुदा हमें मजबूत करे मालिक पाक खुदा, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को सुनकर वह सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, ताकि सारा जलाल, सारी ऑनर, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी आप ही के नाम को मिले। छूना और बड़ी बरकत देना मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। हमने जी भर के खुदावंद की वर्शिप की है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नसरीन अख्तर से कि वो आए और खुदा के कलाम पेश करें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का फजल हमेशा हम सब पर और तमाम सुनने वालों पर बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं और पाकरू की यहाँ पर कसरत से हजूरी के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि पाकरू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। पाकरू अपने अपने अपनी हिकमत से हमें भर दे, अपने अल्फाज से हमें भर दे, ताकि हम वो कलाम जो तू आज हमें देना चाहता है हम उसको कबूल कर सकें, हम उसको रिसीव कर सकें। पाकरू मेरी मदद रहनुमाई करना, मैं ना बोलूं बल्कि मेरे अंदर से होकर। पाकरू तो खुद अपने लोगों से कलाम कर। मैं अपने गले को, अपनी आवाज को, लफ्जों की तरतीब को, हर एक चीज को पाकरू मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ। पाकरू तो खुद कलाम कर, ताकि तेरा ये कलाम सारी दुनिया में, सारे लोगों में 100 गुना फल लाए। जहां जहां भी कलाम का ये बीज बोया जाए, लोग बरकत पाएं, लोग शिफा पाएं और बंधनों से रिहाई पाएं, बंधनों से जो हैं वो जकड़े हुए जो हैं वो आजाद हों, ताकि लश्करों के खुदावंद आजादी आए, क्योंकि जहां तेरा कलाम है वहां आजादी है, जहां सच्चाई है वहां आजादी है, जहां तेरा रूह है वहां हिकमत है, वहां सब कुछ है। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज हम बात करते हैं कि मलाला यूसुफजई, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो जो है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि वो मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान में जब उस पर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से, तो उसको इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड में उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने जो है वो ग्रेजुएट हुई है, उसने ग्रेजुएशन की है और उसके अलावा जब वो 23 साल की थी तो उसको नोबेल पीस प्राइज भी उसको दिया गया है और वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और इसके अलावा जो है वो जो है एक इंटरनेशनल जो है वो तंजीम चला रही है जो खवातीन की एजुकेशन के लिए है, यानी बच्चों और खवातीन, बच्चियों और खवातीन के लिए एजुकेशन के लिए जो है वो काम करती है। और उसको जो है जिस तरह से कि उसको वेस्ट में बहुत ज्यादा उसको पसंद किया जाता है, तो लेकिन पाकिस्तान में उसके अपने मुल्क में जो है उसके लिए जो है बड़ी नफरत पाई जाती है। लोग उसको बड़ी नफरत से उसको याद करते हैं और उसके बयानात को जो है वो बड़ा मतलब उस जो है उस पर बड़ी तनकीद की जाती है। आजकल उसका खास एक बयान आया है जो उसने ब्रिटिश जो है ब्रिटिश वोग मैगजीन है जिसमें उसने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के आखिर में उसने ये एक बात कही है जिस पर जो है बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अ, इस वजह से बहुत ज्यादा वो उसके साथ नाराज हैं, गुस्से में हैं और उस पर बहुत ज्यादा पूरे सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है। तो वो उसका बयान ये है कि मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। तो वो ये कहती है कि इफ यू वांट टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, व्हाई डू यू हैव टू साइन मैरिज पेपर्स? व्हाई कांट इट जस्ट बी अ पार्टनरशिप? वो ये कहना चाहती है कि जब आप एक मैरिज लाइफ में आना चाहते हो तो आपको पेपर साइन करने की क्या जरूरत है? मतलब आपको निकाह करने की क्या जरूरत है? ये एक पार्टनरशिप नहीं हो सकती कि एक पार्टनरशिप के तौर पर जो है वो रहा जाए।
मतलब इसको क्यों इतना मुश्किल कर दिया गया है? जब आप किसी शख्स के साथ रहना चाहते हैं तो आप बस रहना शुरू कर दें। तो इस चीज़ को लेके जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके मतलब जो है गुस्सा उसके लिए पाया जा रहा है, सोशल मीडिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और उस पर तनकीद की जा रही है। आज हम ये देखेंगे कि मतलब जो कहने को तो बात जो है वो उसने किसी भी कौम या किसी भी कबीले या किसी भी उसको टारगेट करके नहीं कही। उसने जो है एक इंटरनेशनली यानी कि समझे कि पूरी उसने पूरी कौम को या पूरी दुनिया की कौमों को या पूरी दुनिया के मुआशरों की उसने नुमाइंदगी करते हुए, यानी कि जिस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि उसने एक जनरल बात की है, उसने किसी एक के लिए नहीं कही। लेकिन हम ये बात सोचते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये बात सोची और समझी जाती है और ये बात कही जाती है कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई है, वो क्योंकि वेस्ट में उसकी ज़्यादा परवरिश हुई है, वेस्ट का उस पर ज़्यादा असर और रसूख़ है, और वेस्ट के लोग जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, और वेस्ट के लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, और ये वो इस किस्म की बातें, और वो ये कहते हैं कि वो उनकी ज़ुबान बोलती है क्योंकि अब वो वेस्टर्न हो गई है। अब वो जो है वो जो हमारा एक तहज़ीब, हमारा एक कल्चर है, उसके मुताबिक वो नहीं रही। यानी उसके बाद कि अब उसकी सोच भी जो है वो उसी तरह से ब्रॉड हो गई है जिस तरह से वेस्टर्न लोगों की है, और वो मतलब वो अपनी इस सोच को जो है हमारी लड़कियों पर या हमारे बच्चों पर जो है वो उसको इम्पोज़ करना चाहती है, वो उस पर लागू करना चाहती है। तो हम यहाँ पर ये बात अब ये देखते हैं कि क्या अगर वो ये लोग ये बात करते हैं कि वेस्ट में जो है ये चीज़ जो है कि हम जो ख़ास तौर पर बाज़ वक़्त वेस्ट का जो मतलब जो है, या जो बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा या ऐसे लोग, इनके बारे में कुछ एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत भी ये हम लोगों में पाया जाता है कि वेस्टर्न लोगों का मतलब जो है ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियन लोग बोला जाता है, मसीही लोग समझा जाता है। या ये समझा जाता है कि ये जो मसीही लोग हैं, ये जो है मतलब इनमें ये गलत चीज़ें, गलत बातें पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पर एक ये गलतफ़हमी दूर कर देना चाहती हूँ। बेशक ये जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिश्चियन उसके नाम से याद किए जाते हैं, मसीही मतलब माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो लोग जो क्रिश्चियन हैं, जो सही क्रिश्चियन हैं, उनका इन बातों में कोई किरदार नहीं है। वो अभी भी जो सही क्रिश्चियन हैं, जो ट्रू क्रिश्चियंस हैं, जो खुदा यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं, वो आज भी खुदा यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ इन मुल्कों में गुज़ारते हैं। यानी यहाँ पर जो रवायात और जो सकाफ़त और कल्चर जो यहाँ पर राइज है, वो मसीही कल्चर नहीं है, वो मसीही रवायात नहीं है। वो मसीही उस कल्चर को जो है वो प्रमोट नहीं करते, जो मतलब यहाँ पर राइज है। अब हम ये देखते हैं कि इनको देख-देख के सारी दुनिया में बहुत सारा जो है, वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है, ख़ास तौर पर लिविंग रिलेशनशिप, शादी से पहले जो है रिलेशनशिप रखना, और फिर मतलब यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऐसे लोग फैमिलीज़ देखी हैं कि जो मतलब जिनके बच्चे हो जाते हैं, ऐसे कपल देखे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर कहीं जाके वो सोचते हैं अच्छा चलो शादी कर लेते हैं। अब हम शादी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इतने साल हो गए हैं इकट्ठे रहते हुए, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और फिर कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ सोचते हैं कि चलो अब ऐसे गुजर रही है तो गुजर नहीं दो, बगैर शादी के, बगैर निकाह के जो है, जब हम पार्टनरशिप में रह रहे हैं तो हमें रहने दो। तो यहाँ पर मैं ये एक आप गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका क्रिश्चियनिटी से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो सही मसीही या ट्रू बिलीवर हैं या होते, तो वो ऐसा ना करते, क्योंकि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो ट्रू बिलीवर हैं, वो जो है इस बात को जानते हैं कि बगैर निकाह के रहना और बगैर शादी के रहना जो है, एक पार्टनर्स के तौर पर या पार्टनरशिप के तौर पर इसको लेना जो है वो गुनाह है। तो हम ये गुनाह नहीं करते। आज भी इन मुल्कों में जो मसीही हैं, जो ट्रू क्रिश्चियंस हैं, जो ट्रू बिलीवर्स हैं, वो इस बात को कंडेम करते हैं, और हम भी इस बात को कंडेम करते हैं। और मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो जिस तरह से बात की है, मैं नहीं जानती कि उसके पीछे उसका क्या है, वो क्यों उसने इस तरह की बात की है। जबकि उसको जो है जिसने उसका इंटरव्यू लिया है, उसने उसको ये बात भी कही है कि आपकी शादी भी होनी है और तुम्हें भी शादी करनी है। लेकिन इस मतलब कि आपकी भी माँ ने भी शादी की है, बहुत सारी ख़वातीन शादी करती हैं। इसी तरह की मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि शायद लोग दुनिया में
یا دوسری قوموں میں اس بات کا غلط تصور لیا جاتا ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں شاید ہم میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے جو ملالہ جو ہے وہ ہمارے کلچر کو دیکھ کر جو ہے وہ اس بات کی جو ہے پروموٹ کر رہی ہے اور اس بات کی پروموشن کر رہی ہے کہ ہم پارٹنرشپ میں رہیں اور شادی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتی ہے، کہ بائبل کیا بتاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں، عبرانیوں کا خط اس کے 13 باب میں اس کی 4 آیت میں جو ہے ہم سب سے پہلے یہ بات پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے ہمیشہ حرام کاروں اور زانیوں کو جو ہے بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حرام کار اور جو زانی ہے وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر خاص طور پر یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، یعنی ہمارے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر جب ہم شادی میں آتے ہیں تو ہمارے نکاح کے بندھن میں ہم بندھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ نبھایا جاتا ہے اور بڑی ہی وفاداری کے ساتھ اس کو نبھایا جاتا ہے، اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا جو ہے حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا، کیونکہ خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے کلام میں جو ہے پہلا گرنتھیوں اس کا اگر ہم دیکھیں 6 باب، تو اس میں بھی جو ہے پولس رسول جو ہے وہ اس بات کی وہ بات کرتا ہے کہ حرام کار جو ہے وہ جتنے حرام کار جو ہے وہ اپنے بدن کا گناہ کرتا ہے، یعنی ہم باقی جو سارے گناہ ہیں وہ سارے گناہ تو انسان کے جو ہے مطلب اس کے وہ گناہگار تو ہے، لیکن جو حرام کار ہے وہ اپنے بدن کا بھی گنہگار ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے بدن کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر وہ اپنے بدن کا بھی گنہگار کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، 15 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ یہ پہلا کرنتھیوں اس کی 6 باب اس کی 15 آیت سے میں پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو۔ تو یہاں پر میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، تو خدا کا مقدس ہونے کی وجہ سے خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے، اور خدا کا روح جب ہمارے اندر بستا ہے تو پھر ہم اپنے نہیں رہے، ہم خدا کے ہو گئے، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہم لہو جو ہمارے لیے بہایا گیا، ہم اس لہو کے وسیلہ سے خریدے جاتے ہیں۔ جب اس لہو کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے ہیں تو پھر ہمیں حرام کاری سے بچنا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ باقی ہم سب جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے بدن سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جب حرام کار گناہ کرتا ہے، یا حرام کاری جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس میں ہم اپنے بدن کے بھی گنہگار ٹھہرتے ہیں، جس کی ہمیں ڈبل سزا ملتی ہے، جس کی ہم ڈبل سزا جو ہے وہ پاتے ہیں۔ اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بائبل میں بڑی ہی واضح طور پر اور بڑے ہی خداوند کے کلام میں بڑے ہی اس بات کو جو ہے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے اس کا آپس میں ریلیشن ان کا کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے باپ آدم اور اماں ہوا کو بنایا اور ان کا جو ریلیشن خدا نے قائم کیا، تو خداوند نے ایک جو الفاظ خداوند کے سب سے پہلے جو لا یا قانون خدا نے دیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ دونوں ایک تن ہیں، اور جس کو خدا نے جوڑا ان کو انسان جدا نہ کرے۔ مطلب کہ خدا کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور ہم اس مقدس رشتے کو
जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन और मोहब्बत का रिश्ता ऐसे रिश्ता है जैसे खुदा यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता है। ये बहुत बड़ा भेद है और ये कि हमें मतलब जो है हमें हर किस्म की हरामकारी से बचना है। और बाइबल मुकद्दस ऐसे किसी ऐसे रिलेशन को जो बगैर निकाह के हो, बगैर शादी के हो, वो पार्टनरशिप हो या लिविंग रिलेशनशिप हो या कुछ और हो, इन ऐसे सारे इक़दामात को या ऐसे सारे कामों को या ऐसे सारे ताल्लुकात को जिनका ताल्लुक हरामकारी से है, बाइबल मुकद्दस जो है इनको कंडेम करती है और बाइबल मुकद्दस जो है हमें सिखाती है कि निकाह करना या ब्याह करना जो है वो सब में इज्जत की बात समझी जाए, यानी इसको अहमियत दी जाए, इसको खास अहमियत दी जाए और इसके बगैर जो है वो ताल्लुक या कोई रिश्ता जो है वो कायम ना किया जाए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि पहला तसल्लुनीकियों में भी जो है पौलुस रसूल कहता है कि चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, न शहवत के जोश से उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। अब यहाँ पर वो एक बात करता है कि जो दूसरी कौमें हैं, जो गैर कौमें हैं या जो लोग इस रिलेशनशिप में रहते हैं बगैर शादी के, वो मसीही कौम नहीं है, वो ट्रू क्रिश्चियंस नहीं है, उनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से नहीं है, वो किसी और कौम से हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो इस चीज को पसंद करते हैं और जिनके माँ बाप इस बात की इजाजत देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहें और उसके बाद अगर उनका दिल किया तो वो शादी कर ले, अगर ना दिल किया यानी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो बाद में क्या करेंगे कि वो इस चीज को जो है खत्म कर देंगे, फिर कोई और रिलेशनशिप ढूंढेंगे, फिर उसमें रहेंगे और इसी तरह से आजकल हो रहा है। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो ऐसे ही जो है वो हो रहा है कि लोग जो हैं अब मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो बाइबल की बातें हैं, जो खुदा के कलाम की बातें हैं, उनको वो भूलते जा रहे हैं क्योंकि उनकी तरबियत इस तरह से नहीं हुई कि वो इस चीज को जाने, इस चीज को समझें कि जो है बाइबल हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। और हम ये देखें कि जो ट्रू क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो इन मुल्कों में रहते हैं, चाहे वो वेस्ट में रहते हैं, चाहे वो कहीं और रहते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ को मानते हैं और फैमिली का जो रिलेशनशिप है या फैमिली का एक बंधन है और फैमिली का जो एक रिश्ता है, वो इसकी चीज़ को अहमियत को समझते हैं और वो उसमें रहते हैं। और क्योंकि हमारे लिए ये बात जो है वो बड़ी ही जो है हम इस चीज को पसंद नहीं करते कि मतलब और हम पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि शायद हम जो है इस चीज को प्रमोट करते हैं, हम हरामकारी को प्रमोट नहीं करते, हम ऐसे रिलेशनशिप को कबूल नहीं करते, हम अपने आप को और अपने बच्चों को हम इस चीज की तालीम देते हैं कि मतलब हमें एक शादी के बाद एक बंधन में रहना है, शादी के बाद हमें इस रिलेशनशिप में रहना है और फिर इसके बाद जो है हमें इसको जो है इसको आखिरी सांस तक हमने इसको निभाना है और हमने इसमें वफादारी के साथ चलना है। हम जानते हैं कि जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है कि ये भेद बहुत बड़ा भेद है जिसको मैं बयान करता हूँ, जिसको मैं बताता हूँ कि जिस तरह से कलीसिया और मसीह का आपस में रिलेशन है, इस तरह से हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो एक बहुत बड़ा भेद है। एक बहुत बड़ा भेद है, ऐसा भेद है कि जिस तरह से मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी, इसी तरह से हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए हैं। वो दोनों एक तन होंगे, लेकिन शादी के बंधन के बाद, निकाह के बंधन के बाद, यानी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये एक पार्टनरशिप है और हम पार्टनर्स के तौर पर हम रहना शुरू कर दें, क्योंकि ये पार्टनरशिप नहीं है। हमारे नजदीक क्रिश्चियन उस फेथ में शादी एक मुकद्दस बंधन है, एक मुकद्दस ऐसा रिश्ता है जिसको हमें निभाना होता है। तो इसलिए हम इस चीज की जो है इस बात को वाजे करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, ट्रू बिलीवर्स जो हैं, वो कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देते। उसका बयान जैसा भी है वो उसकी अपनी सोच है या उसने ऐसा क्यों कहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इस बात को कंडेम करते हैं
اور ہم اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے. ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حرام کاری سے بچو. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اے بچو حرام کاری سے بچو، کیونکہ جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حرام کار اور ہر قسم کا جھوٹ بولنے والے اور لونڈے باز اور زانی اور جادوگر اور بت پرست جو ہیں، ان سب کا آگ اور گندک کی جھیل میں حصہ ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے. یعنی وہ ابدی ہلاکت میں جائیں گے، ابدی ہلاکت میں پڑیں گے، جو آج اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں، یا اور ایسے کسی پارٹنرز کے طور پر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور پھر بچے پیدا کرنا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف دونوں ایماندار ہیں تو پاک اور راست باز نسل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، پرہیزگار نسل پیدا ہوتی ہے، جو خداوند میں چلنے والی ہوتی ہے، جو خداوند کی وفاداری میں چلنے والی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے وہ شادی کرنا، بیاہ کرنا بڑی ہی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے، تاکہ خدا جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور خدا جو ہے وہ ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہماری فیملیز کو برکت دے، ہمارے اس جوڑے کو برکت دے جنہوں نے خداوند کی حضوری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے، تاکہ خداوند انہیں خدا ترس اولاد جو ہے وہ مہیا کرے. خدا ان کو راست باز اولاد سے نوازے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو. بہت خوبصورت سرمن جو ہمیں شادی کے بندھن میں رہ کے خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے، اور یہ ضروری بات ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کی دعا آنٹی نصرت کے ساتھ ذکر کریں گے. Thank you, Heavenly Father, once again that you've given us opportunity. Thank you for this wonderful message. We heard it from your servant, Lord. It is right, Father, that you in the beginning, you created a husband and wife and you blessed them into the husband and wife, Adam and Eve. So do you want us to be like that, Father? Thank you. Our body is your temple, Lord. So we should have, glorify from our body, Lord, being a husband and wife. We can serve you, Lord, because you created a family and you love a family. Thank you, Father. Once again, we're asking, let this message bring prosperity into our life and into other people's life too, whomever be hearing this message, Lord. And what your clear message to be reached to the many, many people's, Lord. So they can open, you open their spiritual eyes so they can walk with you spiritually, Lord. They can understand your initial plan from the beginning, from the Garden Eden, that you put a husband and wife, only one husband and wife, and Father, that you bless them and you told them to prosper and fulfill the earth and take care of the earth for me, Lord, and all the creation and everything, Lord. So do, Father, that husband and wife, it is the holy relation, it is the holy matrimony in the heaven, whomever's come and you bless them, Lord, as a husband and wife, Lord. And so do all the husbands, they have to submit to their wife, and all the wife, they have to submit to their husbands, Lord. So they have to cherish each other, they have to love each other, so they have to glorify the God from their spiritual and from their body. We are asking, Father, that you continue to come and give us some more, many more your plans into our life, and whatever you want us to teach the people, and whatever you want the people to know, you continue to reveal unto us, Lord. Pour your spirit onto us, open our spiritual eye, give us the wisdom and knowledge so we can understand your plans into our life, and we can understand what is your holy plans you already set onto the earth for the mankind and for the women's and the males, Lord. We're asking, Father, that you continue to bless us, Lord, and continue to be with us, Lord. Father, we are going to glorify your name, Lord. We are planning a children's programs, Lord, the quiz programs, Lord. Father, that this vision you have given it to us, Lord. Father, although we are 4 or 5 people, but we are
we are more than enough, Lord, because you want us to walk with the Spirit, Lord. We don't want a big if whatever's like, if the people's life will not be changed by having a big congregation. But Father, you set 12 disciples onto the earth, and then they turned the world over, Lord. Father, that you brought us and you call us in. And Father, give us so many visions so we can fulfill your plans onto the earth, Lord, and we can do your wills to glorify your name, Lord. Father, you said, we are going, Father, for these children's programs, Lord. You said, let the little children come to me, because the kingdom of heaven is for them, Lord. It is like them, Lord. You like the children's, Lord, because you said their angels are they're looking the Father's face in heaven all the times, Lord. They are stay around the Father's throne all the time, and they look at their angels look at the Father's faces all the times, Lord. We bless all the children's, Lord. We're asking, Father, that you continue to pour your Spirit on all the children, and जिस तरह वो सारे बच्चे कदों कामत में बढ़ेंगे, तेरी पहचान में बढ़ते जाए खुदाम। तूने हमें आई खुदाम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तूने हमें ये जिम्मेदारी बख्शी है, इसको तू है खुदाम पूरे अपने इसका तू अपने हाथ में कंट्रोल लेना, और इसको अच्छे तरीके से हमें निभाने की तू जिम्मेदारी तूने की है खुदाम। तो हमें हिम्मत और ताकत अता करना है खुदाम, और हम अपने पूरे दिलो जान से आए खुदाम इसको अच्छे तरीके से कर सकें आए खुदाम। तो से मांगते हैं खुदाम कि तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, अपने जिंदा और जलाली नाम की खातिर। आमीन। आमीन। अब हम अपनी दरवाजा दरखास्तें खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। तो जिस किसी भी कोई दरवाजा दरखास्त है तो वो जरूर शेयर करें। अच्छा, वो मेरी ना डीएनएस को ना चेस्ट पेन हुई थी, लेकिन वो वापस आ गई है। उसका नाम बानी है, तो मैंने उसके लिए भी दुआ की थी। दुआ तो मैं भी करती हूँ, तो हम क्रिसिया में भी उसकी दुआ करें हम सब मिलके कि उसका जो भी ब्लॉकेज है वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए और चल जाए, और वो से तंदुरुस्त रहे और उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने उसको ऑफर किया था कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो वो बड़ी खुश हुई थी। तो फिर और बस हम सब के लिए, बच्चों के लिए और अपने प्रोग्राम्स के लिए दुआ करें, बस अपने लिए करें। और मेरे और मारिया के लिए भी, और पूरी फैमिली के लिए, और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी खुदा की हुजूरी में इस बात को रखेंगे कि खुदा वैसे ही उसके नाम को जलाल दे सकें। तो इन सारी बातों के लिए आंटी नसरीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मैं दुआ करती हूँ, लेकिन मैं इससे पहले कहूँगी कि फ्रोबल दुआ करे, फिर उसके बाद मैं दुआ करती हूँ। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो मेरी जान का लंगर है, तू जो मेरा जोर है, तू जो मेरा मोहकम किला है, तू जो मुझे चढ़ाने वाला है, तू जो बचाने। आपका माइक ऑफ हो गया। तू जो पाक रूह खुदावंद हमारे दरमियान है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में तेरे बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे उतराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में हमने तेरे कलाम करते हैं, यीशु के नाम में रूह कुदस खुदा तेरे वक्त में हमने ध्यान रखा है, बाकी हमारा वक्त में संभालना। तेरा रूह कुदस हमें गाइड करे खुदा, तेरा रूह कुदस जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें तय की बातें बताता है, जो हमें आहें भर भर के रोना सिखाता है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ रूह कुदस खुदावंद। तेरी मौजूदगी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में। झुकी जानों पे तेरा हाथ चाहता हूँ, आंटी नुसरत को खुदा के बच्चों पे तेरा हाथ चाहता हूँ। जो रिक्वेस्ट रखी गई है यीशु के नाम में रूह कुदस खुदावंद, उस बहन को तेरे हाथों में देता
देता हूँ, तेरे खून में छुपा देता हूँ खुदा, तेरे लहू की कुदरत के वसीला से खुदा हर तरह की खुदा उसकी जो बीमारी है तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, क्योंकि तेरा पल्ला छू लेने से शफा मिल जाती है खुदा। तू कहते है तो मुर्दे जिंदा होते हैं खुदा, तो बड़े बड़े काम करते हैं अपने लोगों की जिंदगियों में यीशु के नाम में खुदा। आंटी नुसरत को खुदा, आंटी नसरीन को, उनकी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में। अपने आप को मारिया को, अपनी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में। जो हमारे साथ फ्रेश फैमिली में लोग हैं यीशु के नाम में, भाई हनूक को, पास्टर फयाज साहब को, और जितने भी हैं यीशु के नाम में तेरा हाथ चाहता हूँ खुदा। तू नाम बनाम जानते है, तेरी बरकत उन लोगों पे ठहर जाए खुदा, तेरी हुजूरी उन पे ठहर जाए, और अपने सारे प्रोजेक्ट्स को खुदावंद जो हमने तेरे लिए करने हैं यीशु के नाम में खुदावंद, तो तेरा हाथ उन पे चाहता हूँ यीशु के नाम में, तेरी बरकत आए उन पे खुदावंद, ताकि हम अच्छे तरीके से तेरे शाह होके खुदावंद जैसे तू चाहता है खुदावंद वैसे तेरे नाम को जलाल दे यीशु के नाम में खुदावंद। होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, कि हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदा यीशु के नाम है। तो अपने खुदावंद लोगों को और बढ़ाओ खुदावंद, आसमानी खुदा हिदमत की हदों को बढ़ाओ खुदावंद यीशु के नाम में। सारे प्रोजेक्ट्स पे तेरा हाथ चाहता हूँ खुदा। हम कमजोर हो सकते हैं खुदा, लेकिन तू हमारा जबरदस्त खुदा है जो अपने तालबों को बदला देता है, जो अपने मांगने वालों से पहले ही जानता है खुदा कि हम किन चीजों के मुताज हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, तेरे फजल वाले हाथ को मांगते हैं खुदा, क्योंकि तेरे फजल के बगैर हम खुदा अधूरे हैं खुदावंद। यीशु के नाम में तेरी सताइश हो खुदावंद, तेरी सताइश हमेशा हमारे लबों से जारी रहे खुदावंद। यीशु के नाम में ईमानदार लोगों को मुहैया कर खुदावंद, ताकि खुदा इस फैमिली को बढ़ा खुदावंद, ताकि हम अच्छे तरीके से तेरे नाम की सताइश कर सकें खुदावंद, और शागिर्द पैदा करें खुदावंद, ताकि खुदा दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम को लेके जाए यीशु के नाम में। जो लोग नशे की हालतों में, ज़नाकारियों में खुदा, जो बेरा रवि के शिकार हैं खुदा, जो नाफरमानियों में है यीशु के नाम में खुदावंद, तेरी हुजूरी को उन पे मांगता हूँ यीशु के नाम में। तेरा डर, तेरा खौफ उनकी जिंदगियों में मांग लेता हूँ। तेरा पाक तेरे बच्चों को संभाले जो जुए की लानतों में जकड़े हुए हैं खुदावंद, जो किसी भी तरह से खुदा तुझसे दूर है यीशु के नाम में। तेरी नजदीकी उनके लिए चाहता हूँ यीशु के नाम में खुदा। इस इलाके को तेरे नाम से जीतना चाहता हूँ, मुल्क पाकिस्तान को तेरे नाम से जीतना चाहता हूँ खुदा यीशु के नाम में। फजल बख्श खुदा के बहुत सी रूहों को तेरी हुजूरी में लेके आए, तेरे खेत में शामिल कर सके खुदावंद यीशु के नाम में। फजल बख्श खुदा, तूने हमें चुना है, तूने हमें आवाज दे के बुलाया है खुदा कि हम तेरा काम करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी बढ़ियाई गाएं खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें इस काबिल समझा है खुदा कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें खुदावंद। ये तेरा प्यार है, तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना फजल हम पे किया है खुदावंद यीशु के नाम में। फिर से खुदा झुकी जानों पे तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। आंटी नसरीन को खुदा, इनकी पूरी फैमिली को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में खुदा। तेरे सलामती तेरे लोगों पे चाहता हूँ यीशु के नाम में। हर तरह की खुदावंद परेशानी जो भी तेरे में यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। आंटी नुसरत को खुदावंद, इनकी बेटियों को, उनके हस्बैंड को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद। तो अपने लोगों को संभाल खुदा, और अपने में बढ़ा, तेरे रूह कुदस में खुदा तरक्की करते जाए, तेरा पाक करो, तेरे लोगों को खुदा बढ़ाता जाए खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। पास्टर सदीक साहब को, उनकी फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं, अपने आप को, मारिया को तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में। तेरी बरकत हम पे ठहर जाए खुदा, और हम तुझ में बढ़ते जाए, तुझ में तरक्की करे खुदा। हमारे बदनों से हमेशा तेरे नाम का झंडा लहराता रहे खुदा, हमारे लबों से तेरी सताइश जारी रहे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तो सारे वक्त में संभाले रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मादा वक्त में भी संभालना खुदा। जब हम दोबारा मिलते हैं तो यही मोहब्बत हमारे अंदर हो खुदावंद, ताकि हमारे लबों से तेरी सताइश जारी रहे। छू और बरकत से यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। Amen. Amen. खुदा बुजुर्ग बरतर हम दे शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सारे वक्त और माहौल के लिए, सारे कलाम के लिए, वर्शिप के लिए खुदावंद, इन खूबसूरत मुनाजात के लिए खुदावंद जो तेरी हजूरी में पेश की गई हैं लश्करों के खुदावंद। और हम ईमान रखते हैं खुदावंद को तेरी हजूरी में कबूल हैं, और खुदावंद वो खुदावंद हमारे तक खुदावंद आने में खुदावंद तो अपने वक्त के मुताबिक खुदावंद तो हमें जरूर सरफराजी बख्शता है, तो हम पर अपना फजल करता है, अपना रहम करता है खुदावंद। हम होली सिटी मिनिस्ट्री को खुदावंद और
लिविंग होली स्पिरिट को खुदावंद, मिनिस्ट्री को खुदावंद, और तमाम लोगों को खुदावंद जो हमारे साथ हैं खुदावंद, हम इन सबको खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। और मिनिस्ट्री में जितने भी प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करें खुदावंद, उन सब प्रोजेक्ट्स को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं लश्करों के खुदावंद। और हर एक प्रोजेक्ट के लिए खुदावंद हम तेरे वसाइल को मांगते हैं, तेरे जराए को मांगते हैं लश्करों के खुदावंद। और खुदावंद हम यूथ को मांगते हैं खुदा, हम नौजवान नस्ल को खुदा तुझसे मांगते हैं लश्करों के खुदा, हम सब मुतफिक होकर खुदा तेरी हजूरी में आते हैं। और खुदा तो हमें यूथ मुहैया कर, हमें नौजवान नस्ल दे खुदा, क्योंकि मुबारक है वो लोग जो जवानी के आलम में खुदा जवानी में तुझे कबूल करते हैं लश्करों के खुदा। हम ऐसे नौजवान चाहते हैं खुदा जो तेरे जोश से भरे हो, हम ऐसे नौजवान चाहते हैं जो तेरे खुदा तेरी खिदमत के जज्बे से भरे हो खुदा, जो तेरी खिदमत करना चाहते हो खुदा, जो अपना आप तुझे दे दें लश्करों के खुदावंद। क्योंकि जवान खुदावंद उनकी उनकी खुदावंद शहजोरी, उनकी खुदावंद कुव्वत, उनकी कुदरत खुदावंद तू बढ़ाने वाला खुदा है। क्योंकि खुदावंद वो जो खुदावंद जोर से जोश के साथ खुदावंद तेरी खिदमत कर सके खुदावंद, और हमारे साथ चल सके खुदावंद। क्योंकि तू जानता है कि इंसान खुदावंद जिस्मानी तौर पर कमजोर है, हम जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं खुदावंद। नौजवान नस्ल खुदावंद हमारे बाजू हैं लश्कों के खुदावंद, तू उनको खुदावंद तू हमारे साथ मिला खुदावंद, हमारे साथ खुदावंद उनको उनको भी खड़ा कर। सब लश्करों को खुदावंद हम मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू सारे प्रोजेक्ट को खुदावंद बच्चों के खुदावंद इस बाइबल क्विज प्रोग्राम को अभी से खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। लश्करों के खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए लश्करों के खुदा। और लश्करों के खुदावंद और ज्यादा खुदावंद हमें ब्लेस कर बरकत दे। और खुदावंद सारे प्रोजेक्ट्स को, तेरे कलाम को, अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंद। और जितने लोग खुदावंद हमें यूट्यूब पर सुनते हैं खुदावंद, उनके लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहती हूँ, तेरी ब्लेसिंग्स को चाहती हूँ खुदावंद। सबके घरानों में खुदावंद तेरी बरकत आए खुदावंद। और जहां जहां खुदावंद तेरी खुदावंद तेरी हजूरी है, वहां पर तेरी जो मौजूदगी है खुदावंद, उन पर तो अपने आप को जाहिर कर खुदावंद। और खुदावंद अगर वो तुझसे दूर है खुदावंद, तो इस मीटिंग के वसीले से खुदावंद वो तुझे पहचाने खुदावंद, तेरी हजूरी में बड़े खुदावंद। अगर उनके घरों में परेशानी है खुदावंद, तो उनको निकाल। अगर खुदावंद उनके घरों में माशी बंधन है खुदावंद, तो यीशु मसीह के नाम में वो जलकर भस्म हो। बीमारियों से जकड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह के नाम में वो बीमारियां यस जाती नशे रहे की हालत खुदावंद। में यीशु के और नाम में खुदावंद जाते अगर वो नशे में है खुदावंद, तो नशे की हालत में खुदावंद तो उनको खुदावंद तो उनको इस खुदावंद लानत से निकाल खुदावंद, इस तारीकी से खुदावंद उनको निकाल और उनको आजाद कर। क्योंकि जहां तू है वहां आजादी है लश्करों के खुदावंद। हम तेरी मिन्नत करते हैं और हम नौजवान नस्ल के को तुझसे मांगते हैं खुदावंद, जो नशे में है, जो परेशानियों में है, जो दुखों में तकलीफों में है खुदावंद, तो उनको उठा खड़ा कर खुदावंद, ताकि वो तेरे लोग खुदावंद तेरी हजूरी में बढ़े। और खुदावंद एक रिवाइवल को हम लेकर आए। और हमें ब्लेस करना, हमें हिकमत देना, फहम और समझदारी देना, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 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 हम वही दुआ करेंगे ये सूची ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो हमारे बाप तो जो आसमान आसमान पर है, तेरा तेरा नाम नाम पाक तेरा नाम पाक होना तेरी जाए, बादशाह है, तेरी बादशाही तेरी आए, मर्जी तेरी मर्जी आसमान जाए पर जैसे आसमान आसमान पर पर पूरी होती होती है, है, जमीन पर भी है, जमीन पर भी हो। जमीन पर भी है। रोटी हमारे आज पास हमें दे, रोटी आज में और जो और जैसे अपने अपने कर्ज कर्जदारों को माफ बख्श दे, तो भी हमारे कर्ज माफ तो कर, तुम्हारे कर्ज में आजमाइश बख्श, में मैं समाज में मत पड़े डाल। के बाद शक्ति को कुचला हमेशा करूंगा। कलमा बरकत हम पादी साहब के साथ मिलकर अदा करेंगे, पास्टर सदीक साहब के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की शराकत और रफ़ाकत, झुके जानों के साथ, पाक खुदा तेरे ईमानदार लोगों के साथ और इसी की मिनिस्ट्री के साथ, सारे पार्टिसिपेंट के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ और कनाडा के साथ, तमाम दुनिया के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन। खुदावन में आप सबकी खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावन में आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन। आपका भी खुदावन में आप सबकी सलामती हो। God bless you all.